Good evening, ladies and gentlemen. We absolutely believe in the power of innovative entrepreneurship on every level. That's why we are exploring ways to improve our education wing by making it as effective as possible. I, Priyanka, on behalf of Federation of Indian Industry and Professionals, welcome you all to the leading Industry Insights wing to educate and make aware mankind in the country and globe. Here are some house rules for you. Keep your phone in silent mode. Rename yourself with mobile number. Put your queries in the chat box. Keep your notepad and pen ready. Note down all the relevant points for discussion. Also, for your information, a recorded version of webinar will be available on YouTube and Facebook. Thank you. Now, it is time to learn the fundamentals of the Federation of Indian Industry and Professionals. Unite together, succeed together by making it as a The Federation of Indian Industry and Professionals is a unique, multi-stakeholder organization of visionary industrialists, businessmen, and professionals who share a commitment in shaping the future of industry and society at large. The Federation of Indian Industry and Professionals is a not-for-profit organization. FIIP was established on the 1st of October 2020 with the objective of boosting a small and medium business movement across the country and becoming the voice of India's various business sectors. It serves its members and the whole society through the private and public corporate sectors within the country. FIIP is a lifeline for new startups, small and medium business leaders. It is a crucial platform for networking and collaboration for each stakeholder who is working for the nation-building cause and to build Atmanirbhar Bharat. FIIP is actively engaged in the welfare of business community and general society. It encourages debate and organizes engagement programs with policymakers, Indian private and public corporate sectors, multinational companies, regional chambers of commerce, industrial associations and professional associations in each state of the country. FIIP has created a cluster network of 40,000 plus GST practitioners and made available a platform for networking and consensus building within and across sectors, and is the best platform for Indian industry, policymakers and the international business community. Vision: to facilitate and boost entrepreneurship and entrepreneurial development in the country, to support socio-eco development leaders throughout the nation, to encourage women power in various fields, to make Atmanirbhar Nari. Mission: creating a world-class talent body of 5 lakh influential and powerful industrialists, entrepreneurs, businessmen, women, and professionals through FIIP platform within 10 years. DNA: sustainable growth, empowerment and creation. Purpose: helping business people, supporting economic development. Creating industrial insights, inculcating industrial development. Facilitating forums for professionals, solving problems with the right solutions. Enhancing skills among business owners, and creating a common platform for building interpersonal relationships. Support for micro, small, and medium enterprises businesses, formulating applied strategies to meet challenges of various industries. Making society aware of social, health and environmental issues. FIIP has various business platforms such as Network, Industrial Insights, Karta, Spot, Digital, Womenpreneur and Navorja. These platforms facilitate to make our country Atmanirbhar Bharat in the field of socio-eco environment, education, social and life. Now, it's time to present you Industrial Insights topic for the day. We all know that business is an organization or enterprising entity engaged in commercial, industrial or professional activities. And of course, business is to earn profit. Business comprises very many functions like marketing, sales, service, finance, purchase, R&D, engineering, logistics, human resource, personnel, facility, quality and many others. Further, these functions will have various systems and processes. We need adequate knowledge and various skills to practice and execute these systems and processes, and handle these functions to run the business or an enterprise and achieve desired results. This is where industry insights play an important role in providing inputs on various topics for all kind of business categories and professionals. Industry Insights will have series of programs organized every fortnight, and it will cover topics in different categories like financial management and accounting, marketing,
sales and service, managerial skills and people management, project management and planning, quality systems and quality management, business establishing process, government policies, support system, and legal aspects of business, and many more. These main categories will have very many subtopics to comprise all information and contents. For example, financial management and accounting will have financial planning, management accounting, auditing, taxation, etc. etc. Marketing, sales and service category will have brand management, digital marketing, handling objections, customer retention, etc. Under managerial skills and people management, we will have leadership skills, team building and motivation, delegating skills, analytical skill, and many more topics. Project management and planning category will have project planning and budgeting, resource management, risk management, strategic alignment, etc. etc. Under quality systems and management, there will be topics like 4 main elements of quality, 7 principles of QMS, total quality management, ISO, etc. etc. Government policies, support system, and legal aspects of business will cover topics like government schemes and policies, role of banking in economy, role and support of MSME, etc. The laws to maintain the decorum as per state and central government. With this brief about the industry insights, now I request our programs coordinator to take over for introducing today's topic and the speaker. Thank you. Thank you, Priyanka, and good evening to everyone. My dear friends, मैं नवनाथ देवकर, फाउंडर फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स, आप सब लोगों का इंडस्ट्री इनसाइट्स में स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को पता है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स एवरी वीक इवनिंग 7 बजे इंडस्ट्री इनसाइट्स में अलग सब्जेक्ट्स हम लोग लेके आते हैं बिजनेसमैन के लिए एंड अपकमिंग बिजनेसमैन के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज भी हम लोग एक सब्जेक्ट लेके यहाँ पे आए हैं, स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप्स, अंतरिक्ष उद्यमिता। दोस्तों, आप सब लोगों को, कितने लोगों को लगता है कि ये सब्जेक्ट जानना चाहिए? कितने लोग एक्साइटेड है ये सब्जेक्ट जानने के लिए? प्लीज चैट बॉक्स का यूज कीजिए और आप मी टाइप कीजिए। कितने लोग अंतरिक्ष व्यावसायिकता को समझना चाहते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं ये समझना चाहते हैं? क्या आप लोगों को पता है यहां से आगे आने वाला जो पीरियड रहेगा स्पेसिफिकली फॉर 2030 से 2050 तक का, बहुत सारे लोग ये सेक्टर में काम करने वाले हैं और आज के डेट से यहाँ पे काम करना लोगों ने चालू किया है। और ऐसे एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के लिए समझने के लिए हम लोगों ने आज इनवाइट किया है लक्ष्यमित्रा योगेश अशोक उंडे जी, जो बिजनेसमैन है, बिजनेस सारथी है, रिलेशनशिप एंड हैप्पीनेस सारथी है। अलग अलग कंपनी को लीड कर रहे हैं, जैसे कि लक्ष्य गुरुकुल है, एम्पायर ऑप्टिकल है, योग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स है, और इसके साथ साथ वो इसरो मैजिका स्पेस टेक प्राइवेट लिमिटेड में भी काम कर रहे हैं लीडरशिप टीम में, वहां पे वो डायरेक्टर है। तो चलिए मिस्टर योगेश अशोक उंडे जी को हम लोग वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। चैट बॉक्स में उनके लिए वेलकम लिखिए प्लीज। थैंक यू एवरीवन। सो योगेश जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ के लेंगे। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स पाए हैं उनके करियर में, जैसे कि इंडिया लीडरशिप टीम 2019, उनको एक्टर सोहा अली खान ने अवार्ड्स दिया था। उसके साथ साथ में आदर्श उद्योग रत्न बाय द हैंड्स ऑफ द एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी, उसके साथ साथ में नेशनल नोबिलिटी बाय द हैंड्स ऑफ सोशल वर्कर्स अन्ना हजारे, नेशनल स्पीकर 2020 बाय द हैंड्स ऑफ द भारतीय डायरेक्टर्स, नेशन यूनिटी, नेशनल स्टार आइकॉन, राज्य स्तरीय सेवा गौरव, बेस्ट बिजनेस प्लान, बेस्ट स्पीच अलोकेशंस कंपटीशन जज, बेस्ट 1 मिनट प्रेजेंटेशन हैट्रिक अवार्ड्स। ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स मिस्टर योगेश जी को मिले हुए हैं। इसके साथ साथ में उन्होंने उनके करियर में बहुत सारे सर्टिफिकेशंस भी किए हैं। तो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ट्रेनर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स NIMSC के पास से उन्होंने सर्टिफिकेशंस लिया हुआ है।
इसके साथ साथ में उन्होंने NLP सर्टिफिकेशन किया है, डीप स्लीप थेरेपिस्ट है, अर्ली राइजिंग प्रोग्राम प्रैक्टिशनर्स भी है। उसके साथ साथ में वो हाइपोनेटिस्ट, कैलिफोर्निया हाइपोनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया, वहां से उन्होंने हाइपोनेटिस्ट का सर्टिफिकेशन किया है। उसके साथ साथ में वो ग्राफोलॉजिस्ट है। इसके साथ साथ में वो युवाचार्य भी है, यूथ एंड लाइफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर से उसका सर्टिफिकेशन लिया है। इसके साथ साथ में वो एक DMIT प्रैक्टिशनर भी है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ वो एक ऑथर भी है, एक लेखक भी है। आज तक उन्होंने 5 से ज्यादा बुक का लिखान किया हुआ है। उसमें से आता भेट थेट शिखरावरती एक मराठी बुक्स उन्होंने लिखा है। उसके साथ साथ में एक नंबर जिद्द जिंकण्याची, ये भी मराठी बुक्स है। इसके साथ साथ में आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, गाजवा विद्यापीठ बना सभाधीश, ये भी एक किताब उन्होंने लिखा है। उसके साथ साथ में सुपर मॉर्निंग हिस्ट्री, इसके साथ साथ में अवेकिन श्री छत्रपति शिवाजी महाराज विद इन यू एंड बिजनेस सम्राट, ऐसे अलग अलग बुक्स उन्होंने यहाँ तक अभी तक उन्होंने लिखे हुए हैं। तो ऐसे आज के स्पीकर समय मिले हैं। सो मैं वापस से योगेश जी आपका वेलकम करता हूँ प्लेटफॉर्म के ऊपर, और आगे की धुरा आपकी ओर देता हूँ। वेलकम मिस्टर योगेश उंडे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो फर्स्ट में पीपीटी सबको नजर आ रही है? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस सर। Yes, okay, thank you. So let's start today's session, Industry Insights by Federation of Indian Industry and Professionals. So आज का टॉपिक है स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप, जहां पे हम दो मेन पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। पहला है स्पेस इंडस्ट्री एंड सेकंड इज एंटरप्रेन्योरशिप स्कोप इन द फील्ड ऑफ स्पेस, या स्पेस इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योरशिप का क्या स्कोप है। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके हम ऊपर चर्चा करेंगे। आई एम नॉट बहुत ज्यादा ज्ञानी ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं कुछ सवाल भी आपसे पूछूंगा कि आपको कुछ कितना पता है, क्या पता है, थोड़ा मैं भी आपसे कुछ सीख लूंगा। सो हम लोग इंटरैक्टिव वैसे आगे जाएंगे। बीच बीच में आपको सवाल पूछूंगा, अगर आप चैट बॉक्स में भी उसका आंसर लिखेंगे तो मजा आएगा डिस्कशन करने में। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। सो ये इंस्ट्रक्शंस एक बार वापस दोहराना चाहूंगा कि आपका फोन साइलेंट मोड पे रखिए, मोबाइल नंबर से आपका नाम रिप्लेस कीजिए, कुछ भी क्वेरीज हो तो चैट बॉक्स में डालिए, नोटपैड पेन रेडी रखिए और जो भी नोट्स है वो लिखिए। ओके, सो कुछ सवाल। एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का सर्वे हुआ था, क्या आप सब पता है कि उसमें ऐसा कहा गया था कि 24% ऑफ इंडियंस वांट टू वर्क इन द स्पेस सेक्टर। 24% ऑफ इंडियंस मतलब 100 करोड़ की आबादी भी पकड़े तो इतना 24% आबादी ये स्पेस सेक्टर में खास करके यंगस्टर्स काम करना चाहते हैं। More than 40% of jobs will be in space sector and related industry after 2015, or in between 2024 to 27, first woman will be on the moon. 27 to 2030 मून कॉलोनी बनाने जा रहे हैं लोग। 2040 to 60 में मार्स पे हमारा बेस होगा, और अगले 10 साल में इंडिया 20,000 सैटेलाइट से भी ज्यादा सैटेलाइट्स, अराउंड 20,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है। सो ये सब हमारे आजू बाजू हमारी पृथ्वी पे हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, कभी कभी न्यूज आती है। अभी हमने देखा कि आगे उसके बारे में भी बात करेंगे कि अभी प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये जो स्पेस जो सेक्टर था वो सिर्फ देश का काम था, जैसे रॉ डिफेंस, वैसे स्पेस ये हमारा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। इसलिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसरो ही देखेगी, यूएस में नासा देखेंगी, यूरोप में ईएससी देखेंगी, तो ये ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। लेकिन अभी प्राइवेट सेक्टर को भी एंट्री दी गई है, उसके बारे में हम आगे बात ही करने वाले। तो ये सब चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही है, तो क्या हम रेडी है इस स्पेस इंडस्ट्री के इंसाइट्स के साथ, वहां पे लगने वाली इंफॉर्मेशन, नॉलेज और चैलेंजेस के साथ। तो ये सवाल के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। तो ये सवाल जो मैंने आपसे पूछे, कुछ सालों पहले अगर मुझे ये सवाल पूछे गए होते तो मेरा हर एक सवाल के लिए जवाब होता ना। सो आई एम नॉट अ फ्रॉम स्पेस इंडस्ट्री। मैं बताना चाहूंगा, मैं जब भी कोई सेशन लेता हूँ या मेरा दिन भी जैसे जीता हूँ या जिंदगी जीना चाहता हूँ, तो मेरे दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो भी करूँ ऐसा करूँ कि सामने वाले को लगे कि मैं भी कर सकता हूँ, और दूसरी चीज मैंने भी ये करना चाहिए। ऐसे जिंदगी जियो कि सामने वाले को लगे कि मैंने भी ऐसी जीना चाहिए और मैं भी ऐसे जी सकता हूँ।
तो ये बताने का रीजन है कि आई एम जस्ट नॉर्मल आर्ट्स ग्रेजुएट। मुझे सीखना बहुत पसंद है, 3000 से ज्यादा किताबें मैंने पढ़ी है, मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेशन लिए, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल एजुकेशन देखेंगे तो आई हैव डन जस्ट द ग्रेजुएशन ओनली, वो भी बीए हिस्ट्री आर्ट्स में। तो ये सेक्टर में मैं कैसे आया, तो जैसे मैंने कहा कि बूढ़े से बच्चे से लेके बूढ़ों तक सबको स्पेस का एक आकर्षण तो रहता है, लेकिन हर कोई इस दुनिया में अपना स्पेस मतलब अपनी जगह बनाना चाहता है, अपने आप को ढूंढता है। तो मेरी लाइफ की करियर की शुरुआत हुई बैंक से, मैंने जॉब किया लेकिन जॉब में मन नहीं लगता था। तो मुझे लगा कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा अच्छा मेरा दिल लगेगा, वो मेरा पैशन है, उसमें मैं ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसके सहारे कर पाऊंगा, इसलिए आई लेफ्ट माई जॉब। उसके बाद मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आया। आई स्टार्टेड विद स्टूडेंट डेवलपमेंट, मैंने बच्चों को पढ़ाना या उनके स्किल डेवलप करना शुरू किया। सो आई स्टार्टेड विद द स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस या स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, वहां से मैंने मेरे करियर की शुरुआत की। मेरी कंपनी को बहुत सारे अवार्ड भी मिले। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मैंने अभी शार्क टैंक तो अभी शुरू हुआ, मैंने 2012 में ही फर्स्ट इन्वेस्टमेंट रेस की थी 1.5 करोड़ की। तो बहुत बड़ी टीम थी, सब अच्छा चल रहा था। तो मुझे बिजनेस के चैलेंजेस आए, तो मुझे लगा कि एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सलेंट होने के साथ बिजनेस इज द अनदर डोमेन, उसके बारे में भी नॉलेज लेना चाहिए। तो मैंने कुछ एमबीए वगैरह किया नहीं था, किताबें पढ़ी, बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारे बिजनेसमैन से मिला, उनके इंटरव्यू लिए और बिजनेस सीखना शुरू किया। जिन स्टूडेंट्स को मैंने 8, 9, 10, 11 में सिखा रहा था वो बड़े हो रहे थे। उसी में से एक लड़का जिसके स्किल पे एटीट्यूड पे मैंने काम किया था, जो 11th में मुझे मिला था, जो एक डिप्लोमा कर रहा था, उसमें मुझे एक स्पार्क दिखा और मैं उसे ट्रेन कर रहा था। आगे जाके वो एरोस्पेस इंजीनियर बना। इतना ही नहीं, उसे यंगेस्ट स्पेस साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, रेड प्लैनेट अवार्ड मिला। उसने जो भी प्रोजेक्ट्स किए उसे सराहे गए, उसे कैंपस में इलॉन मस्क की कंपनी में जॉब की भी ऑफर हुई। लेकिन उसे भी एक जिद थी कि खुद का कुछ करना है और इंडिया के लिए करना है। और उसने कुछ मुझे ऐसे सवाल उसने उस वक्त मुझे ये पूछे थे, और इतना ही नहीं, उसने कुछ मुझे फैक्ट्स भी बताए जो हम आगे जाके देखने वाले हैं। और मेरी आंखें खुल गई कि क्यों जरूरी है स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप में आना। तो वो हम सब देखेंगे। तो वो मुझे मिला, फिर मैंने उसे ट्रेन किया और मेरा इस सब्जेक्ट को लगाव देखते हुए आगे जाके हमारी पार्टनरशिप, पहले मैं 2% सिर्फ एक इंक्यूबेटर या एग्रीगेटर करके काम करता था, लेकिन मेरा इन्वॉल्वमेंट, मेरा नॉलेज के लिए भूख, मेरी किताबें पढ़ना, इस नॉलेज के पीछे भागना, ये सब देख के उसने मुझे को फाउंडर बना दिया। और मैं एक स्पेस टेक प्राइवेट लिमिटेड का एक को फाउंडर, एक सीएक्सओ करके आज काम कर रहा हूँ। तो ये सब बताने का रीजन में एक नॉर्मल ग्रेजुएट से एक इसरो मैजिक का स्पेस टेक, जो एक स्पेस टेक और एजुकेशन में काम करती है, उसका सीएक्सओ बन पाया। इसका रीजन मैंने लिया इसका इंफॉर्मेशन, इसका नॉलेज, और जाने इसके चैलेंजेस जो एंटरप्रेन्योर का काम होता है। मैंने ढूंढे वो लूप होल जहां पे जाके हम लोग कुछ तो डेंट इस दुनिया में ला सकते हैं। तो वो देखेंगे हम, क्या इंफॉर्मेशन, क्या नॉलेज मैंने लिया, जो आज मैं कुछ हद तक आपसे शेयर करूंगा। पहले तो आपको पता होगा कि जो अब्दुल कलाम सर ने जो एक रॉकेट उड़ाया था, उसको साउंडिंग, फर्स्ट रॉकेट जो लॉन्च किया था, जिसकी कहानी की उन्होंने साइकिल पे वो रॉकेट के पार्ट लेके गए थे, हम सबको वो पता है। तो उसे साउंडिंग रॉकेट। तो साउंडिंग रॉकेट क्या होता है? साउंडिंग रॉकेट साउंड वेव से कुछ इंफॉर्मेशन वेदर की लेता है, जिससे हमारे देश को या हमारे देशवासियों को कुछ इंफॉर्मेशन जो मिलती है उससे बहुत सारा फायदा हो सकता है। जैसे आपको बताता हूँ कि जैसे हम सैटेलाइट भी लॉन्च करते हैं या साउंडिंग रॉकेट से जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अभी उड़ीसा में कुछ पिछले साल जो हमने देखा कि वहां पे एक हरिकेन आया था। तो उस उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है पटनायक सर, उन्होंने इसरो की मदद से पहले ही इंफॉर्मेशन ली थी, जिसके वजह से लाखों लोगों को वो वहां से शिफ्ट कर पाए। और कुछ 4-5 लोग थे जिनको वो अफेक्ट हुए, इतने लोगों की जान बचा पाए बिकॉज ही वॉज कनेक्टेड विथ इसरो, और वहां से वो इंफॉर्मेशन ले पाए। तो ऐसे साउंडिंग रॉकेट आज तक इंडिया ने 200 छोड़े हुए हैं। और आज तक जो काम, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ गवर्नमेंट कर रहा था, अभी प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे अलाउ किया गया है। इसरो के जो डायरेक्टर है उनका विजन है, जो रॉकेट लॉन्च के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, वो कुछ $1000 में, मतलब लाख रुपए में रॉकेट लॉन्च कर सके। वो टेक्नोलॉजी या वो ऐसा प्रोसेस हो, उतना कंपटीशन बढ़े, उतने लोग इस सेक्टर में आए, इसलिए प्राइवेट सेक्टर के को भी द्वार खुले किए गए। रॉकेट लॉन्च करना है, सैटेलाइट लॉन्च करना है, उसके लिए लॉन्च पैड भी इसरो की तरफ से दिया जाता है। तो 2022 में लास्ट दिसंबर में पहला प्राइवेट रॉकेट स्काईरूट कंपनी ने, जो एक स्टार्टअप है, उन्होंने लॉन्च किया। उसी के साथ थोड़ी जानकारी सैटेलाइट्स के बारे में भी लेते। तो 1990 to 2000, इन 10 सालों में इंडिया ने सिर्फ 2 सैटेलाइट लॉन्च किए थे।
उसके अगले 10 साल में 22 सैटेलाइट लॉन्च किए, उसके अगले 10 साल में 295। सो सी हाउ, मतलब कितने टाइम्स में ग्रोथ है। और 2020-30 में 3000 प्रोजेक्टेड है सैटेलाइट लॉन्च करने हैं। पिछले 2 साल में ही 2022 तक ही 385 अराउंड 400 सैटेलाइट्स ऑलरेडी लॉन्च किए गए। इतना ही नहीं, इंडिया ने जो सैटेलाइट, इंडिया से सैटेलाइट लॉन्च करना ये कंपेयर टू अदर कंट्रीज बहुत ही रीजनेबल प्राइस में होता है, इसलिए इंडिया, बाहर के कंट्रीज भी इंडिया को सैटेलाइट लॉन्च के लिए एज अ कस्टमर आते हैं। तो टोटल 22 कंट्रीज से आज तक इसरो के साथ मिलकर सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। सो यूएस से 230, यूएस ने 230 का ऑर्डर दिया था, यूके ने 50 का, जर्मनी ने 13 का, कनाडा ने 12 का, सिंगापुर ने 11, इजराइल 5 और बाकी अदर रेस्ट ऑफ द नेशन जो सैटेलाइट लॉन्च करते। तो सैटेलाइट लॉन्च करने के पीछे क्यों लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं? आपने सुना होगा अपने बिजनेस को हेलीकॉप्टर व्यू से देखना चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम को अगर हेलीकॉप्टर व्यू से देखेंगे तो अच्छी तरीके से उस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। लेकिन आज जमाना हेलीकॉप्टर व्यू का नहीं, सैटेलाइट व्यू का है। तो हमारे देश के वेदर से रिलेटेड है या बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस जो आ सकते हैं और बहुत से सॉल्यूशन जो ला सकते हैं, उसके लिए सैटेलाइट का नेटवर्क होना ये हमारे लिए बहुत ही मददगार, हमारे लिए क्या पूरे पृथ्वी के लिए मददगार साबित हो सकता है। सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं। लोग कहते हैं अरे पहले अपनी बॉर्डर तो सिक्योर करो, बाद में रॉकेट उड़ाओ, बाद में सैटेलाइट छोड़ो। वो इतना नहीं समझते कि भाई बॉर्डर भी सिक्योर करने के लिए भी हमारे सैटेलाइट ऊपर होना बहुत जरूरी है। एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी, इसलिए ये साल या अगले साल शायद वो आ भी जाए एग्जिस्टेंस में। वो क्या चल रहा है कि हम देखते हैं कि जो फार्मर्स है वो मिट्टी लेके प्रयोगशाला में जाते हैं और उसका एग्जामिनेशन करते हैं कि वो मिट्टी का पोत कैसा है, वहां पे क्या उग सकता है। ये भी काम विद इन, अभी देखो फार्मर को वो लेना है, प्रयोगशाला में जाना है, वापस आना है, रिपोर्ट लेने जाना है, कितना मतलब टेडियस काम है। ये काम विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट आगे जाके फार्मर को मोबाइल पे उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके लैंड के क्वालिटी के साथ, वहां पे उस सीजन में कौन सा क्रॉप या वहां पे कौन सा जो नेचुरल जो डिजास्टर आ सकता है, ये सब उसको मोबाइल पे मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। सो सैटेलाइट से ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं जो धरती के ऊपर है। सो ये रॉकेट, लोग कहते कि अरे पहले दुनिया के अर्थ के तो प्रॉब्लम सॉल्व करो, बाद में जाके स्पेस को एक्सप्लोर करो। हम जब तक स्पेस को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक हम जो अर्थ का एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है ना, वो नहीं रुकेगा। अर्थ का एक्सप्लॉयटेशन रोकना है तो स्पेस को एक्सप्लोर करना बहुत बहुत जरूरी है। सो स्पेस फ्रॉम वर्ल्ड में देखेंगे कि बाहर क्या, हमने तो इंडिया के बारे में जाना, अभी देखते हैं दुनिया क्या कर रही। आज तक जितने सैटेलाइट छोड़े गए तो ऊपर 3000 सैटेलाइट, डेड सैटेलाइट्स भी है। मैं जो भी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं आपको, उसमें आपको गैप ढूंढना है, उसमें आपको पॉसिबिलिटी ढूंढनी है एज ए एंटरप्रेन्योर कि कहाँ कहाँ बिजनेस हो सकता है। तो इतने डेड सैटेलाइट है, उतना कचरा ऊपर अंतरिक्ष में फैला हुआ है। सो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और मैं कहूंगा जब प्रॉब्लम वर्ड आता है तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वहां पे रहती है पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। जैसे हम कहते थे कि धरती पे भी जो कचरा एक प्रॉब्लम था, हम जानते हैं कि कचरे में से भी लोगों ने कितना पैसा बनाया हुआ है, कितने स्टार्टअप्स आज उसमें लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन डॉलर्स बना रहे। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो 3000 सैटेलाइट्स अभी डेड है, टोटल 5500 एक्टिवेटेड है। तो इतने 8-10 हजार सैटेलाइट अब तक पूरी दुनिया से छोड़े गए हैं। 2030 तक, 2030 तक 58,000 सैटेलाइट लॉन्च करने का प्रोजेक्शन है। सैटेलाइट लॉन्च करने का एक्सपेंस स्पेसएक्स ने आज का उसका एक्सपेंस है 11.3 to 20 मिलियन डॉलर्स। $1 मिलियन इज इक्वल टू 8 करोड़। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 150-200 करोड़ सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए लगता है। रॉकेट लॉन्च करने का एक्सपेंस $25 मिलियन, वो भी अराउंड 200 करोड़। इसरो ये $4.4 मिलियन में कर रहा है। सो 30-40 करोड़ में इसरो ने किया हुआ है। स्काईरूट ने अभी जो लॉन्च किया, प्राइवेट कंपनी थी, उनको 200 करोड़ लगे। ये कॉस्ट धीरे धीरे कम होने वाली है बिकॉज प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री मिल रही है इसके वजह से। ये तो जाना स्पेस इंडस्ट्री के बारे में। मैं बार बार कह रहा हूं, लोग कहते हैं कि धरती के बारे में सोचो, तो देखते हैं हमारी धरती को। ऐसी हमारी धरती दिखती है, नजदीक से देखे, थोड़ा चांद के ऊपर जाए, चांद से पिक्चर लिया गया तो ऐसी दिखी। थोड़ा हमारे जो 9 ग्रह है, हमारे जो सोलर सिस्टम है, वहां से देखा गया तो ये जो आपको डॉट दिख रहा है, ये है हमारी पृथ्वी। और पूरे गैलेक्सी का जब फोटो लिया गया दूर से, तब हमारी पृथ्वी है ये एक छोटा सा डॉट।
सो हम बिजनेस जब करते हैं, कोई भी यहाँ पे जितने बिजनेसमैन है, हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस कितना फैल सकता है, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, 4 P's कहा जाते हैं, उसमें से एक पी प्लेस है। तो कितनी जगह, कितना स्पेस है स्पेस में एक्सप्लोर करने के लिए। और इसी के साथ ये फोटो ना, जितने साइंटिस्ट लोगों ने बोला, मिला हूं मैं आज तक विद द हेल्प ऑफ माय को फाउंडर एंड माय सीईओ, उन लोगों ने ये फोटो हमेशा उनके मतलब मोबाइल में रहती है, और बोलते कि हम कितने छोटे, हम कितने छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेके बैठे। जब हम स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे कि ये इतना बड़ा है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम हो रहे हैं ना, ये जात पात के नाम पर, ये सब हम अपने आप भूल जाएंगे। व्हेन वी फोकस ऑन ग्रोथ, व्हेन ऑन एक्सप्लोरेशन, ऑटोमेटिकली आवर फोकस गोज, एनर्जी गोज एंड इट ग्रोज। तो हम वहां पे ग्रो करेंगे, ना कि ये छोटी मोटी बातें जिसमें हमारा टाइम, पैसा, मेहनत सब वेस्ट जा रहा है, देश का भी और लोगों का भी। सो ये जो स्पेस युग है, वो हमने चांद पे, जब हम स्कूल में थे हमने पढ़ा था, पहली बार चांद पे कदम रखा, लेकिन उसके बाद स्पेस में कुछ ज्यादा एक्सप्लोरेशन या ज्यादा कुछ हलचल नहीं हुई। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि प्राइवेट प्लेयर भी आ गया और एकदम से स्पेस रिवॉल्यूशन या स्पेस एज आ गया। क्योंकि अब तक स्पेस पे सिर्फ काम नेशन कर रहे थे, लेकिन एक प्राइवेट प्लेयर जिसको दिखी है अपॉर्चुनिटी, जिसको दिखे प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के वजह से स्पेस एज या स्पेस रिवॉल्यूशन हो नहीं रहा, जो कंट्री स्पेस में इतना स्कोप होने के बाद आगे नहीं बढ़ रही, उस प्रॉब्लम को उसने ढूंढा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाया। दुनिया को भी स्पेस के द्वार तो खुल ही गए, लेकिन वो भी देश का नहीं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, इलॉन मस्क। तो उसने क्या किया, क्या हुआ उस दिन, और उसके बाद ये क्या स्पेस रिवॉल्यूशन शुरू हो गया, देखते एक वीडियो के माध्यम से। सो ये था वो मोमेंट। तब तक एक प्रॉब्लम था कि जो भी हम रॉकेट लॉन्च करते थे, उसके पार्ट्स, मतलब सिर्फ जो क्यूबिकल में जो उसका एक पार्ट रहता है, उसमें बैठ के जो एस्ट्रोनॉट है वो तो वापस आ सकता था, या सैटेलाइट के लिए जो रॉकेट छोड़ते थे, वो सैटेलाइट ऊपर गया, रॉकेट जो है वो हमें क्या करता था, विद द हेल्प ऑफ ट्रेजेक्टरी, ऐसे जहां पे नो मैंस लैंड है या सी में, उसको हमें डालना पड़ता था, वहां पे भी वो वेस्टेज या कचरा हो जाता था। ये प्रॉब्लम था और बहुत खर्चा होता था। तो एक बंदा, उसको ये रॉकेट बनाने थे, वो रशिया गया, रशिया जाके उसने पूछा कि मुझे रॉकेट चाहिए। वो लोग हंसे, रॉकेट की कीमत पता है तुझे, रॉकेट क्या होता है पता है, और उसका मजाक उड़ाया, उसे भेज दिया। लेकिन उसकी चाह थी तो चाह है, वह रहा है, उसे स्पेस एक्सप्लोर करना ही था। उसने खुद किताबें पढ़ी, वो भी स्पेस साइंटिस्ट नहीं था, स्पेस बैकग्राउंड से नहीं था, लेकिन उसको प्रॉब्लम दिखा, उसकी चाह थी, उसका पैशन था, और उसने किताबें पढ़ के खुद रॉकेट बनाना सीखा, और ऐसा रॉकेट बनाया दुनिया का, जो वापस, जैसे प्लेन वापस आ सकता है, हेलीकॉप्टर वापस आ सकता है, रॉकेट तब तक वापस, वही रॉकेट वापस रीयूज नहीं होता था। वो टेक्नोलॉजी उसने ढूंढ के निकाली। आज नासा और अदर कंट्रीज उस टेक्नोलॉजी के लिए उसको पैसा दे रहे, और विद हिज सपोर्ट या कोलैबोरेशन करके आज वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे, नए नए प्रोजेक्ट्स बना रहे। सो इज नन अदर देन एलॉन मस्क। सो एलॉन मस्क ने हमें ये नई राह दिखाई। नहीं तो चांद पे तो कदम 60-70s में ही रखा गया था, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तब तक सिर्फ गवर्नमेंट, इनमें ही कंपटीशन था। रशिया है, यूएसए है, इनमें कि हम पहले स्पेस को कौन एक्सप्लोर करे, चाइना भी उसमें आ गया था। लेकिन जब प्राइवेट प्लेयर को ओपन हुआ है मार्केट, तो आज फर्स्ट वुमन भेजी जा रही है मून पे मून कॉलोनी बनाई जा रही है। इतना ही नहीं, हम मार्स पे भी कॉलोनी बना रहे हैं। तो अब लोग पूछते हैं, बहुत से लोगों को पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं, मून पे क्यों कॉलोनी बना रहे, मून पे कॉलोनी बनाने की जरूरत क्या है। तो मून ऐसी जगह है जो खर्चा आज पृथ्वी से रॉकेट लॉन्च करने में या सैटेलाइट लॉन्च करने में, या हमें मार्स जाने के लिए जितना फ्यूल या जितना पैसा लगता है, उससे कम समय में, उसके कम दाम में ये काम चांद पे से हो सकता है। मून इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लॉन्च एनी रॉकेट टू गो टू द मार्स। इसलिए मून पे सिटी बनानी है, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है, मून पे ऐसे बहुत सारे चीजें पाई है, जैसे उसे हीरे भी मिले वहां पे, तो उनकी भी माइनिंग करनी है, वहां से भी बहुत सारी वेल्थ क्रिएट हो सकती है।
उसी के साथ वहां पे कुछ ऐसे मिनरल्स मिले हैं जो एकदम प्योर फॉर्म में है, और वहां पे मिनरल्स का जो यूज हो गए वहां पे मून सिटी के लिए, वही के मिनरल्स या वहां वही का जो मटेरियल है वो यूज किया जाएगा एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में। इसलिए मून पे हमें सिटी बनाई जा रही है। और बहुत से लोग, बहुत से देश कहूंगा मैं, इसमें बहुत आगे हैं, हम बहुत पीछे। लेकिन इंडिया ने भी, अभी इंडिया का भी एक गगनयान अभी मिशन है ये कि हम भी चांद पे जा रहे हैं। हमारे भी 3 लोगों को हम चांद पे भेज रहे, जिसमें एक महिला भी है। हमारे व्योम नॉट, जैसे अमेरिका भेजता है तो उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉट, तो से इंडिया भेजेगा तो उसको कहा जाएगा व्योम नॉट या गगन नॉट कहा जाएगा। तो वैसे हमारे भी स्पेस, मैं कहूंगा वॉरियर, जो अंतराल वीर, वो जाने वाले हैं चांद पे। तो चांद पे ये जो रेस चल रही है चांद पे जाने के लिए या स्पेस पे जाने के लिए, इसका रीजन एक है चांद का। दूसरा है जो एस्ट्रॉइड्स है, एस्ट्रॉइड्स में भी बहुत सारे ऐसी चीजें है जो एकदम प्योर फॉर्म में है। ऐसे कुछ खनिज है उसमें जो जो अगर हम वहां से अगर निकाले, उसकी माइनिंग करें, तो वो हमें हमारी धरती के लिए भी, और जो हमें स्पेस एक्सप्लोर करना है, स्पेस में जो सिटीज हमें बनानी है, उसके लिए भी वो यूज हो सकता है। यहाँ से इंडिया या भारत या पृथ्वी से किसी खनिज को निकालना और बिल्डिंग करने के लिए वो बाहर लेके जाना, इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा रहेगी और हमारा अर्थ भी एक्सप्लोर हो सकता है। लेकिन जो एस्ट्रॉइड जहाँ पे कोई जीव नहीं है, उस एस्ट्रॉइड से माइनिंग करके भी वर्ल्ड में जो या स्पेस में सिटी बनाने है, वहां पे वो खनिज या वो जो मटेरियल है वो यूज हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे जो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है अर्थ पे, वहां पे अनलिमिटेड अवेलेबल है एस्ट्रॉइड्स या बाकी ग्रहों पे। एक अगर हम एस्ट्रॉइड ले, वहां पे $1 ट्रिलियन से ज्यादा, वापस रिपीट करता हूं, $1 ट्रिलियन से ज्यादा का रिसोर्स या मटेरियल हमें मिल सकता है, ऐसे ट्रिलियंस एस्ट्रॉइड स्पेस में। सो थिंक, क्या अमाउंट का वेल्थ तो छोड़े, क्या अमाउंट का रिसोर्स हमें मिल सकता है, जो शायद जो हमें एक्सप्लोर करना है उसके लिए जो पृथ्वी का हो रहा है वो एक्सप्लोरेशन भी रुक सकता है। इतना बहुत सारा अबंडेंट वे में हमारे लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। और जैसे मैंने कहा कि वहां से ही एक्सट्रैक्ट करके वहां से ही सिटी बिल्ड करने के लिए वो ज्यादा फायदेमंद और ज्यादा फिजिबल रहेगा, इसीलिए भी ये चेस स्पेस में चल रहा है। तो हमारा जो बेस्ट केस रहेगा, ये सब कर रहे हैं क्योंकि हमें मार्स पे सिटी बनानी है, मार्स पे बेस बनाना है। ऐसा दिखता है मार्स, जिसका ऑलरेडी प्रोजेक्शन शुरू हो चुका है, जिसके लिए करोड़ों अरबों इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टर लोगों ने दिए। अभी वो इन्वेस्टर्स, वो एंटरप्रेन्योर्स हमसे ज्यादा, जो मिलियन बिलियन डॉलर्स के हकदार है, ट्रिलियनियर्स है, वो अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे तो उनको हमसे से ज्यादा समझ होगी ना, कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो सच्चाई होगी। देखो कुछ सालों पहले एक लेडी ने कहा था कि आगे जाके लोग ऐसे एक क्या कहूंगा, एक से ऐसा एक डिवाइस यूज करेंगे कि विदाउट वायर भी एक दूसरे से बात कर पाएंगे। बहुत सालों पहले पेपर में न्यूज आई थी, लोग उस पे हंसे थे, लेकिन आज हम सब, वो आज हमारा क्या जीव की प्राण हो गया है, वो है मोबाइल। तो कोई भी इन्वेंशन तो हमें लगता है अरे कब होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी थॉट इंसान के दिमाग में आता है वो सच्चाई में बदल सकता है। तो ये भी सच होने वाला है और ये सच होते हुए दिख भी रहा है। आगे हम जानेंगे देख कैसे। तो सबसे बड़ा चैलेंज था स्पेस में कि जैसे हम धरती पे तो वो रॉकेट बना पाए कि उतार सके, क्योंकि धरती की जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसका स्टडी वो अलग है, धरती के चैलेंज, लेकिन स्पेस के चैलेंजेस अलग है। तो वहां पे वो अभी एक्सपेरिमेंट वहां पे उस स्टेज पे कि वहां पे कैसे उतारा जाए। और दूसरा, अगर हम वहां पे बेस बनाएंगे तो हमारे खाने पीने का क्या, हम जीने के लिए, तो वो भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है और उसमें साइंटिस्ट लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, और एक वीनस जो शुक्र ग्रह है उसके ऊपर भी 60 किलोमीटर अबव जो बलून सिटी बनाने का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। और बलून सिटीज में भी वेजिटेबल ग्रो करने का प्रोजेक्ट नासा और एक इंडियन साइंटिस्ट भी कर रही है, वो भी हमारी टीम में है जो नासा के साथ कनेक्टेड में इसके ऊपर काम कर रही है कि शुक्र ग्रह के ऊपर बलून सिटी में जो एग्रीकल्चर बनाया जाएगा या जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी वो उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। तो इतने सारे रिसर्च चल रहे हैं, तो कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो उनको पॉसिबिलिटी दिख रही होगी। इसलिए इसी रेस में आने के लिए पे इसमें हमने भी, जो हमारी कंपनी है वो अभी देखो, जब 12 लोग गए थे ना मून पे, 12 लोग आपसे जा चुके हैं, तो 4 लाख लोगों की जरूरत लगी थी। तो अभी तो सिटी बनाने जा रहे हैं, तो सोचो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी।
इसका अवेयरनेस लाने के लिए हमने भी ये कदम रखा है। ये गैप हमने ढूंढा कि जो फर्स्ट या जो ग्रोइंग कंट्रीज है वो तो आगे, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इसकी शुरुआत बताना चाहूंगा कि हम लोग ऐसी अवेयरनेस कर रहे थे बच्चों में विदाउट एनी इंटेंशन एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी, जस्ट सोशल एक्टिविटी करके 54 कंट्रीज में हमारा नेटवर्क बच्चों का फैल गया है जो स्पेस सेक्टर में इंटरेस्टेड है। हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते थे, हमारा स्पेस क्विज वर्ल्ड कप हुआ, स्पेस ओलंपियाड हुआ, ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज हुई। और तब एक गाजा पट्टी, जो आपको पता होगी कि पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में गाजा पट्टी है, वहां के एक स्टूडेंट ने कहा कि मुझे भी स्पेस साइंटिस्ट बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे भी स्पेस साइंस का नॉलेज चाहिए जो आज लाखों करोड़ों रुपए लेके मिलता है, क्या आप हमारे लिए ये अफोर्डेबल वैसे ला पाएंगे। और वो एक किक मिली हमें कि ये अगर संतुलन नहीं रहा, जैसे मैंने कहा कि चाइना, अमेरिका ये मून पे आगे माइनिंग के लिए, आर्मी अमेरिका ने तो, यूएस ने तो खुद की स्पेस आर्मी, दुनिया की पहली स्पेस आर्मी भी बना दी है, क्योंकि उनको पता है आगे जाके, अभी स्पेस में कोई रूल नहीं है, जो पहले जाएगा उसका वो, तो ये क्या होगा, असंतुलन हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा दुनिया का। सिर्फ ये जो ग्रोइंग कंट्रीज ही वहां पे जो रिसोर्सेस के अगर हकदार हो जाएंगे, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी इस रिवोल्यूशन में आनी चाहिए। इसलिए हमने ये पहला कदम रखा विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। वैसे ही आपको ढूंढना है, जो भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा उससे, कि आपको क्या गैप दिखेगा, आप उसमें कहा सकते, आज कितने लोग इसमें आ रहे हैं, कितने स्टार्टअप्स आए, कितना उनका टर्नओवर है, कितना इन्वेस्टमेंट, ये सब हम जानेंगे। तो उसके पहले हमने ये जाना स्पेस इंडस्ट्री के बारे में कि स्पेस इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है। उसी के साथ अब हम देखेंगे, ये एक लड़की जो आपको दिख रही है, जानवी देंगटी, इंडिया की फर्स्ट एनालॉग एस्ट्रोनॉट है। जो राइट साइड में जो वीडियो है उसके ऊपर, आंध्र प्रदेश की एक गरीब, बहुत ही इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से लड़के आज नासा में एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन चुकी है, इंडिया की फर्स्ट वुमन। तो ये है हमारी प्रेरणा, ये हमारी प्रेसिडेंट है। तो इसी प्रेरणा के साथ मैं आगे जाऊंगा स्पेस सेक्टर के बाद एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक पे। तो स्पेस सेक्टर तो जान लिया हमने कि क्या क्या हो रहा है। अब तक जो मैंने कहा वो समझ में आया तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं अब एंटरप्रेन्योरशिप स्कोप के बारे में बात करूं। यस यस, ये बहुत स्पेस बड़ा है तो टॉपिक भी बड़ा है, लेकिन कुछ कुछ एक ओवरव्यू हम ले रहे हैं। देखो एंटरप्रेन्योर है ना, ही इज नॉट द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, ही इज द मास्टर इन हैंडलिंग मास्टर्स। वो किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं होता, वो एक्सपर्ट लोगों को हैंडल करने में एक्सपर्ट होता है। तो दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमें जैक ऑफ ऑल बनना है, लेकिन मास्टर ऑफ वन क्या बनना है, मास्टरिंग ऑल मास्टर्स। तो हमें सिर्फ ओवरव्यू लेना है। देखिए आज ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि उसको डेप्थ में पता हो कि बाबा वो बैटरी कैसे बनती है वगैरह, उसको बिजनेस करने आना चाहिए कि अरे ईवी में आज स्कोप है। कुछ सालों पहले किसको पता था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, जहां पे कुछ बड़े प्लेयर है, आज कोई भी आ सकता है। इस सेक्टर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई। कल को स्पेस सेक्टर में भी ये होने वाला है। जस्ट आपको एंटरप्रेन्योरशिप समझ के लेना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। सो 3 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। पहली रहती है लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योरशिप। सो व्हाट इज लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योरशिप? लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि आइडिया एक आती है, और आइडिया से हम इनकम, एक सस्टेनेबल इनकम, एक अच्छा इनकम, वहां तक ही हम हमारा कदम रखते। जैसे मेरे एरिया में मैं देखूं कि अच्छी बेकरी नहीं है, तो मैं अच्छी टेस्ट वाली कुछ अलग रेसिपी, कुछ अच्छा मतलब ब्रांडिंग वगैरह करूं, और मैं क्या करूं, वो एक बेकरी लेके आऊं, और वो बहुत अच्छी चल रही है, लाखों का महीने का अच्छा बिलिंग हो रहा है, मैं भी लाखों में कमा रहा हूं, 2-4 मेरे सेंटर भी और हो गए, फ्रेंचाइजी भी हो गई। ये हो गई लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज आइडिया टू इनकम। कि ऑलरेडी एक गैप जो दिख रहा है, जैसे मैंने कहा बेकरी, वैसा गैप ढूंढ के ऑलरेडी वो है, लेकिन उसमें कुछ गैप है, उसमें कुछ कमतरता है, वो अच्छा नहीं है। मैं कुछ अच्छे तरीके से, अलग तरीके से प्रेजेंट करूं, और मैं अपना एक सस्टेनेबल इनकम, एक जो ग्रो तो हो लेकिन वो 100-200 करोड़ से आगे नहीं जा सकता है, उसको कहते हैं लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योरशिप। ये अच्छा बिजनेस होता है, प्रॉफिट भी अच्छा होता है, लेकिन इसका जो ग्रोथ है वो 100-200 करोड़ से ज्यादा नहीं होता है, उसको लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। सेकंड है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे आइडिया टू आइडियल, ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये प्रॉफिट को नहीं देखते। जैसे मैंने कहा पहला लाइफस्टाइल है प्रॉफिटेबल होता है बिजनेस हो, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है प्रॉफिटेबल से ज्यादा मेरी जो आइडिया, जो मैं सोल्यूशन लेकर आया हूं, वो हर एक बंदे तक कैसे पहुंचे, हर एक इंसान तक जिसका वो प्रॉब्लम है उसके पास वो सोल्यूशन कैसे पहुंचे, इसके लिए वो लोग
मतलब फोकस रहते हैं जो बिजनेस जैसे हमारा फिफ्थ है, ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है कि आज जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेसमैन है, वो बहुत सारा चैलेंज फेस कर रहे हैं, बहुत सारा नॉलेज नहीं है उनको, नॉलेज डोमेन में काम मार खा रहे, स्किल डोमेन में मार खा रहे, विल डोमेन में मार खा रहे, इंटेलेक्ट डोमेन में मार खा रहे, फील्ड डोमेन में मार खा रहे, टीम डोमेन में मार खा रहे। जहां जहां वो चैलेंजेस आ रहे हैं वहां पे कैसे मदद कर सके, इसलिए नो प्रॉफिट पे आज फिट चल रही है। ऑब्जेक्टिव एक ही है कि इंडिया के हर एक इंडस्ट्रियल्स क्या जो प्रोफेशनल्स है उनको मदद हो सके। सो आइडिया टू आइडियल ये रहता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जो रहता है इसमें दोनों चीज आती है, इसमें प्रॉफिट भी आता है और इसमें सोशल भी आता है। बिजनेस इज इटसेल्फ अ सोशल एक्टिविटी। हम बिजनेस जब करते हैं, हम कोई प्रोडक्ट लाते हैं, सर्विसेज लाते हैं, लोगों के प्रॉब्लम दूर करते हैं, तो ये भी एक सोशल एक्टिविटी है। तो यहाँ पे बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि प्रॉफिट और सोशल एंगल ये दोनों साथ में रहते हैं, इसलिए ये स्केलेबल रहता है, ये इन्वेस्टेबल रहता है, और इसीलिए ये बिजनेस आइडिया टू इनकम से आगे जाके इन्वेस्टमेंट तक और आगे जाके आईपीओ तक भी जाता है। ये 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख करोड़ तक भी जा सकता है। जिससे इलॉन मस्क, हम बाहर की बातें करेंगे तो टेस्ला है, स्पेसएक्स है, इंडिया की बातें करेंगे तो ओयो है, ओला है, नाइका है, ये सब। अभी स्टार्टअप के बारे में बहुत सारा एक मिथ है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे कि ये बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। ये जो इन्वेस्टमेंट का गेम है, ये जो स्केलेबिलिटी का गेम है, ये जो वैल्यूएशन का गेम है, ये गलत है, ये रॉन्ग है, तो ये सब मिथ है। लोक ते म्हणतात ना, द्राक्ष आंबट करता येत नाही स्वतःला माहित नसतं आणि मग ते नावं ठेवतात। मैं इसके बारे में सिर्फ एक ही बोलूंगा, अगर ये इन्वेस्टमेंट का, ये वैल्यूएशन का बिजनेस खराब होता तो रतन टाटा, उनको तो हमसे ज्यादा अक्कल है ना, उन्होंने ओयो में पैसा नहीं इन्वेस्ट किया होता। अंबानी, दुनिया का या इंडिया का भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसने डंजो में इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता, 25% के लिए 1,500 करोड़ नहीं दिए होते। अगर ये वैल्यूएशन का गेम या इन्वेस्टमेंट का गम ये फुगा है लोग बोल रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ गुमराह करना है लोगों को। ये दुनिया, फेसबुक, टेस्ला, ये इसी गेम से बड़े हुए और दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, तो ये गेम समझना जरूरी है। तो ये बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है। तो स्पेस जो फील्ड है, अभी ये तीनों गलत है क्या? आपकी चाह, आपका पैशन, आपकी कैपेसिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, इसके ऊपर डिपेंड है आपको कहाँ जाना है। जॉब भी गलत नहीं रहता है, गलत है अगर आपको जॉब पसंद नहीं है फिर भी आप जॉब कर रहे हैं। वैसे ही ये तीनों गलत नहीं है, लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योरशिप गलत नहीं है। आपको जो भाता है, आपको जो आता है, उस हिसाब से ही आप इन तीनों में से चुन सकते हैं। तो स्पेस सेक्टर में भी ये तीनों की अपॉर्चुनिटी है। लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक आप 100-200 करोड़ तक एक बिजनेस बना सकते हैं प्रॉफिटेबल अच्छे से। आइडियल सोशल एक्टिविटी भी है इसमें, इसरो ऑलरेडी कर रहा है, साल में 60 बच्चों को फ्री सिखाती है, तो इसरो खुद ये सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं। सो ऐसे सोशल एक्टिविटी या कुछ ऐसे सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जिससे दुनिया का भला हो, तो वहां पे भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी कुछ लोग रहे, और एलन मस्क जैसे लोग बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रहे हैं। तो ये तीनों स्कोप हमें पहले समझना जरूरी है, और हम किस स्कोप में बैठेंगे। तो अभी तक आगे आप जाके सोचना, लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है, आप पहले में जाएंगे, दूसरे में जाएंगे या तीसरे में जाएंगे? टाइप 1, 2, 3 किस में जाएंगे आप? 1 में जाएंगे, 2 में जाएंगे, 3 में जाना चाहते हैं? आगे जाके अगर आपको इसमें कुछ ब्रेक थ्रू मिलता है, कुछ एंट्री मिलती है, तो किस में जाना आप पसंद करेंगे? टाइप इट इन द चैट बॉक्स। यस, हेलो, आप लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे? चलो, आपके सेक्टर में आप क्या कर रहे हैं? आप लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर है, सोशल एंटरप्रेन्योर है, या बिजनेस एंटरप्रेन्योर है? आप इसको इन्वेस्टमेंट आईपीओ तक लेके जाना चाहते हैं, वैसा आपका पूरा प्रोसेस रेडी है? या आप एक 100 फ्रेंचाइजी, 200 फ्रेंचाइजी, 100 करोड़, 200 करोड़ का बिजनेस, एक मंथली अच्छा टर्न हो, प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, या फिर आप सोशल एक्टिविटी में ही ज्यादा बिलीव करते हैं, सोशल आपको एक इम्पैक्ट लाना है? सो एल, एस या बी टाइप कीजिए जल्दी से। यस, ताकि मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं। हेलो, यस यस यस, ओके ग्रेट, चलो, गुड गुड गुड, ग्रेट। सो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में दूसरा एक एनसॉफ मैट्रिक्स, फिफ्थ का पहला जो ओपनिंग का प्रोग्राम हुआ था,
वहां पे मैंने एनसॉफ मैट्रिक्स के बारे में एकदम डिटेल में बताया हुआ है, इसकी लिंक भी यहाँ पे दी गई है। स्पेस से रिलेटेड मैं आज कुछ बातें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये पूरा कंसेप्ट मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। आप फिप के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पे प्रदीप लोखंडे सर, जो रूरल मार्केटिंग के गुरु कहा गए, उन्होंने भी बताया इसके बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज बिजनेस कैसे कनेक्टेड है या हम में लीडरशिप कैसे होनी चाहिए, उसमें एनसॉफ मैट्रिक्स मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी मैं स्पेस एंगल से बताता हूँ। तो आप जिस भी एंटरप्रेन्योरशिप में, तो अभी जैसे एक आईटी रेवोल्यूशन आके गया, आगे भी मैं कहूंगा कि आईटी रेवोल्यूशन जब आया तब हम लोग हम लोगों ने उसको क्या क्या विरोध किया कि जब कंप्यूटर आएंगे लोगों के जॉब जाएंगे इंडिया में, उसका बहुत विरोध किया गया। इसके वजह से क्या होगा कि आईटी रेवोल्यूशन की बस हमारे हाथ से छूट गई और हम एक सर्विस प्रोवाइडर, आज इंडिया एक सर्विस प्रोवाइडर बन चुका है। कोई भी बड़े प्रोडक्ट जो कहेंगे हम, माइक्रोसॉफ्ट है या फिर आईफोन है, ऐसे जो प्रोडक्ट्स जो दुनिया पे राज करती है, ऐसे प्रोडक्ट या सेमीकंडक्टर है, वो हम नहीं बना पाए, हमारी वो बस छूट गई, हम बहुत पीछे रह गए, हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर बन के रह गए। वैसे ही अभी स्पेस एज आने वाला है, स्पेस रिवोल्यूशन, तो उसका रॉकेट हमारे हाथ से न छूटे, इसलिए ये एनसॉफ मैट्रिक्स समझ के लेते। एक होता है ओल्ड प्रोडक्ट ओल्ड मार्केट, तो मैं स्पेस के साथ कुछ अलग रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। जैसे हम कहेंगे एक चाय की दुकान है, तो हम देखते थे कि कुछ सालों पहले चाय की दुकान कैसे रहती थी, बहुत एकदम भद्दी गंदी टूटे हुए ऐसे हिलने वाले बेंच रहते थे, एक बनियान में आदमी बैठता था, वो चाय कोई ऐसे बनाता था, पसीना पोंछता था, वैसे ही चाय बनाता था, और हम लोग वहां पे जाके कटिंग पीते थे। हमारे हॉस्टल लाइफ में तो हमें याद है, या फिर ऐसे ही कभी टपरी रहती थी। एक बंदा आया, उसको देखा ये ओल्ड प्रोडक्ट है, मतलब चाय कितने सालों से ओल्ड मार्केट है, मतलब मार्केट भी है। तो पहला वो आया जिसने उसको प्रोफेशनल तरीके से चकाचक बनाया, उसको एक कॉर्पोरेट लुक दिया, और हम जानते हैं कि महाराष्ट्र से फिर वो येवले अमृतुल्य उभरा, और वो कितना नाम हुआ, कितनी उनको ब्रांडिंग मिली। ये हो गया ओल्ड प्रोडक्ट ओल्ड मार्केट। तो स्पेस इंडस्ट्री में भी ऑलरेडी कुछ ऐसे सेगमेंट है और ऐसे कुछ सेक्टर है जो कुछ सालों से चल रहे, सैटेलाइट रहेगा, रॉकेट रहेगा, या उसके छोटे पार्ट्स रहेंगे, उसके लिए सॉफ्टवेयर रहेगा, उसके रिलेटेड सर्विसेज रहेंगी। जैसे मैंने कहा 12 लोगों के लिए 4 लाख लोग काम कर रहे थे, जब 12 लोग स्पेस में थे, 4 लाख लोग धरती पे काम कर रहे थे। तो ऐसा कुछ जो ऑलरेडी चल रहा है, उसमें एज अ वेंडर, एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर, जैसे हम कहेंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर भी लेंगे, तो ऑलरेडी गाड़ियां बन रही थी, उसके रिलेटेड पार्ट सब बना के दे रहे थे। अभी ईवी का आ गया, तो ईवी चार्जिंग स्टेशन हो गया। तो ओल्ड प्रोडक्ट ओल्ड मार्केट, उसमें आपको फर्स्ट मूवर करके एक अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी बिजनेस में। दूसरा होता है ओल्ड प्रोडक्ट न्यू मार्केट। भाई प्रोडक्ट तो पुराना है, लेकिन एक ऐसा मार्केट है जो अनटैप्ड है। जैसे एक इंजीनियर बंदे ने ढूंढा कि उसको दिखा कि इंजीनियर बंदा इंजीनियरिंग करते वक्त तो बहुत चाय पीता है, एक बार वो आईटी प्रोफेशनल बन गया तो सीसीडी में जाके बैठता है। तो उसको ऐसे क्या किक दूं कि सीसीडी के बजाय वो मेरे यहाँ पे आके बैठे। तो एक कड़क स्पेशल महाराष्ट्र का ब्रांड था वैसा, उसने इंजीनियर्स को टैप किया, और वैसे चीनू की चाय करके एक ब्रांड है, उन्होंने भी ऐसे हाई प्रोफेशनल्स को टैप किया, वहां पे जाके बैठ सकते हैं। तो उन्होंने ओल्ड प्रोडक्ट न्यू मार्केट, ऐसा मार्केट जो अनटैप था चाय के लिए, जो उन्होंने छोड़ दिया था इंजीनियर्स या प्रोफेशनल्स। उसके बाद आ गया न्यू प्रोडक्ट ओल्ड मार्केट। तो पहला फर्स्ट मूवर, उसके बाद रहता है फास्ट मूवर, तीसरा रहता है बेस्ट मूवर। तो फास्ट मूवर के बारे में स्पेस में क्या कर सकते हैं, तो ओल्ड प्रोडक्ट ऐसे कुछ है जिसको ऐसे कोई कंट्री जो इसमें आना चाहते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई कंपनी जिनको सैटेलाइट लॉन्च करना उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है, उनका बिजनेस 10x 100x तक बढ़ सकता है, वो आइडेंटिफाई करना मतलब ओल्ड प्रोडक्ट न्यू मार्केट होता है। न्यू प्रोडक्ट ओल्ड मार्केट मतलब बेस्ट मूवर, मतलब मार्केट वही है लेकिन कुछ नया प्रोडक्ट, जो मैं कहूंगा एलन मस्क ने क्या है कि रॉकेट तो थे ही, लेकिन न्यू प्रोडक्ट लेके आए, वापस आने वाले रॉकेट बना दिए। इसको कहा जाता है बेस्ट मूवर। और न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट मतलब ग्रेट मूवर, मतलब वो जो अभी मार्स पे सिटी बना रहा है, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, मून बेस बनाया जा रहा है, वो है न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। सो ये एनसॉफ मैट्रिक्स में आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें, या अगर आप स्पेस सेक्टर में आना चाहते हैं जो $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो ये 4 पॉइंट्स पे आपको R&D या रिसर्च स्टडी करना है। हमने भी जब इस स्पेस सेक्टर में आए तो हमने चारों पे काम किया, और हमें जो आता है, हम जो चाहते हैं, हमारा जो विजन है, हमारा जो पर्पज है, उससे अलाइन एक पर्टिकुलर मार्केट पकड़ा, और उसमें अब आ चुके हैं। सो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस सब्जेक्ट है, ये हमारे बहुत पुराना, ऐसा नहीं ये नया सब्जेक्ट है, लेकिन ये कुछ साल तक एक दफन था जमीन में। मतलब हमारे
जो कहूंगा कि पुराणों में भी स्पेस के ऊपर स्टोरी थी कि त्रिपुरा असुर थे, उन्होंने ब्रह्मा की आराधना की और वो 3 असुर थे और तीनों असुरों ने मांगा कि हमें एक उड़ने वाला ऐसा एक महल दो जो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहे और हम वहां पे रहेंगे। तो ब्रह्मासुर ने वरदान दे दिया, तीनों के 3 ऐसे महल बन गए उड़ने वाले जो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते थे और वहां से वो पृथ्वीवासियों को तकलीफ देते थे। बाद में फिर भगवान शंकर ने एक ही तीर से तीनों को मार डाला, ऐसी कहानी है। सो पुराणों से लेके इतना ही नहीं, हमारे एंशियंट गुरुकुल सिस्टम में जो 64 स्किल्स सिखाए जाते थे, सब्जेक्ट सिखाए जाते थे, आप जाके देखिए उसमें। मैंने पिछली बार भी एक फिफ्थ के प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेनिंग में कहा था कि 4 ऐसे सब्जेक्ट थे जो स्पेस सेक्टर से रिलेटेड थे। अंतराल विज्ञान ऐसा नाम भी था एक का, स्पेस खगोल शास्त्र, स्पेस सेक्टर से 4 सब्जेक्ट कनेक्टेड थे। सो स्पेस ये पुराणों से चला आ रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री से चला रहा है। बीच में मेडिवल हिस्ट्री में वो दब गया था, अभी मॉडर्न हिस्ट्री और आने वाले सदियों में ये ही बहुत बड़ा युग आने वाला है। तो अभी ये जो त्रिपुरासुर की कहानी बताई, इसका रीजन कि वैसे अभी त्रिपुरासुर का तो किला नहीं है जो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है, ऐसा एक स्टेशन घूम रहा है, स्पेस स्टेशन, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, और एक दो स्पेस स्टेशन अभी चक्कर काट रहे हैं पृथ्वी के, जहां पे जाके बहुत सारे रिसर्च होते हैं। कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा है टियोगोंग स्पेस स्टेशन ऑफ चाइना, जिसे कहा जाता है कैसल ऑफ हेवन कहा जाता है, स्वर्गातला राजवाड़ा ऐसा उन्होंने कहा हुआ है उसको। सो यहाँ पे क्या होता है, अभी तो इन 4 सब्जेक्ट की स्टडी की जा रही है वहां पे, मटेरियल साइंस, बायोलॉजी, एनाटॉमी, मेट्रोलॉजी और मेडिसिन साइंस, पदार्थ विज्ञान, जीवशास्त्र, शरीरशास्त्र, औषध वैद्यक शास्त्र, त्याच्यानंतर पर्यावरण शास्त्र, इन टॉपिक्स की वहां पे स्टडी की जा रही है, ताकि हमें जो आगे एक्सप्लोर करना है इन टॉपिक पे रिसर्च हो रहा है। तो ये भी अभी एग्जिस्टिंग में कहूंगा ओल्ड प्रोडक्ट या ओल्ड मार्केट है, कि यहाँ पे अगर आप कुछ ऐसा नया कुछ लाते हैं तो यहाँ पे आपको स्कोप है, आपको पेनिट्रेट करने का यहाँ पे स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप में आने का। दूसरा यहाँ पे क्या स्टडी किया जाता है, इम्पैक्ट ऑफ वेदर आउटसाइड ऑन ह्यूमन लाइफ, इसके ऊपर भी स्टडी किया जा रहा है। यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर बनाए गए, वो सुपर कंप्यूटर जो है हमारे बने, उसका जो स्पीड है वो 10x बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वहां पे बनाए हुए सेमीकंडक्टर यूज करने से। ये भी एक रिसर्च वहां पे हुआ है। यहाँ पे जो मेडिसिन जो स्पेस स्टेशन में बनाए जाते हैं उसकी इफिशियंसी इतनी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो धरती पे बनाए जाते हैं तो वहां पे वो जो एनवायरमेंट एक प्योरेस्ट फॉर्म में बनने के लिए, इफेक्टिव बनने के लिए नहीं है, वहां पे वो स्पेस पे मिलता है। तो वहां पे मेडिसिन इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि वहां पे बनाए गए मेडिसिन की इफिशियंसी धरती पे बनाए गए मेडिसिन से कई गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, स्पेस टूरिज्म की सोच से वो बनाया गया था, ऑलरेडी स्पेस टूरिज्म शुरू हो चुका है। हमारे फिफ्थ के ग्रुप में एक बार मैंने वो वीडियो भी शेयर किया था कि कैसे अंतरिक्ष में जाके आए 3 यंगस्टर्स, और उन्होंने देखा कि कैसे, मतलब स्पेस स्टेशन तक भी जाने की जरूरत नहीं, उसके पहले ही जाके आज इलॉन मस्क ने शुरू कर दिया, जेफ बेजोस ने शुरू कर दिया, रिचर्ड ब्रांसन ने स्पेस टूरिज्म शुरू कर दिया है। उसके बाद होटल इंडस्ट्री की भी नींव रखी गई है, क्योंकि जब स्पेस टूरिज्म के लोग जाएंगे उनको खाना लगेगा, इसलिए वहां पे रेस्टोरेंट्स भी रहेंगे, ऐसी भी नींव रखी गई है। तो ये सब चीजें स्पेस स्टेशन पे हो रही। तो थोड़ा जानते हैं ये शुरुआत कैसे हुआ। धरती के ऊपर ऐसा स्पेस स्टेशन रहेगा, ये सोच 1903 में रखी गई थी एक रशियन साइंटिस्ट ने, कि एक कैसल रहेगा। पता नहीं उन्होंने अपनी पुराणों की कथा सुनी थी कि नहीं उसके वजह से, लेकिन उन्होंने कहा कि सेलेस्टियल कैसल रहेगा जो धरती के खुद के मतलब खुद भी घूमेगा और धरती के इर्द गिर्द भी घूमेगा। लेकिन 1950 में फिर उसके ऊपर एक्चुअली व्हील स्टेशन का आइडिया प्रेजेंट किया गया, जो अमेरिकन साइंटिस्ट ने, जो ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ। और उसके पहले 1960 में अमेरिका ने भी कोशिश की थी, यूएस ने, कि मैन ऑर्बिटरी लैबोरेटरी फॉर द पर्पज ऑफ स्पाई, एज ए स्पाई उन्होंने वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कि हम दुनिया के ऊपर नजर रख पाए। वो फेल गया, लेकिन 1917 में रशिया सक्सेसफुल हुआ, पहला स्पेस स्टेशन धरती के ऊपर। तब तक वो भी आइडिया किसी को पॉसिबल नहीं लग रही थी। तो ये डेट्स आप देखिए, एक आइडिया है 1903 में, उसके ऊपर काम हुआ 1950 में, और विद इन 2 डिकेड्स 20 सालों में आइडिया सच साबित हो गई। और एक रिसर्च ये कहता है, जो आप भी मानेंगे, कि पिछले 5000 सालों में जितना ग्रोथ
या एक्सपेरिमेंट या इनोवेशन नहीं हुआ है, उतना सिर्फ पिछले 100 साल में हुआ है। और आफ्टर 2000 तो इतना स्पीड है ग्रोथ का कि पिछले 100 साल में जो नहीं हुआ वो 10 साल में हो रहा है, 10 साल में जो नहीं हो रहा है वो 1 साल में हो रहा है। इतना स्पीड है ग्रोथ का। हमने कभी सोचा नहीं था, कि हमने सुना था सिर्फ कि फ्लाइंग टैक्सी आएगी, लेकिन आ चुकी है। आईआईटी मद्रास ने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, उनको इन्वेस्टमेंट भी मिली है, बना चुके हैं वो। तो ये सब एग्जिस्टेंस में आएगा, ये सब बताने का रीजन भी वही है। 3 कॉस्मोनॉट, जब रशिया के एस्ट्रोनॉट गए तो उसे कॉस्मोनॉट कहा जाता है। हमें सिर्फ एस्ट्रोनॉट पता है, लेकिन जब जिस देश का बंदा जाता है उस हिसाब से उसका नाम रखा गया है। सो 3 एस्ट्रोनॉट गए थे और वो वहां पे आप देख सकते हैं 23 दिन रहे। तो क्या हम बाहर जीवित रह सकते हैं? उसका जवाब 1917 में ही मिल चुका था। 15 साल अगले 7 स्पेस स्टेशन भी एस्टेब्लिश किए गए। तो एक तो हो गया, आगे तो हो सकते तो 7 और एस्टेब्लिश हुए। इतना नहीं, इंडिया से भी 1984 में राकेश शर्मा गए थे, जो 7 दिन उस सैल्यूट 7 के उस स्पेस स्टेशन पे रहे थे। यूएस ने भी 73 में लॉन्च कर दिया और 3 एस्ट्रोनॉट भेजे, जो देख सकते हैं आप। पहला यूनिट जाने के बाद सेकंड यूनिट, पहले यूनिट में 3 लोग थे, बाद में जो सेकंड यूनिट गया 60 दिन, और तीसरा यूनिट अराउंड 80-90 डेज वहां पे रहा। और 1979 में उनका स्काईलैब करके जो स्पेस स्टेशन था वो हिंद महासागर में गिर गया। तब एक बहुत बड़ा, आप छोटे हो गए या कुछ लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था वो पृथ्वी पे गिर जाएगा, क्योंकि 9th फ्लोर का था, 78 टन का था, और धरती तबाह हो जाएगी इतनी, क्योंकि इतने ऊपर से इतनी स्पीड से गिरने वाला था। लेकिन वो हिंद महासागर में उसके कुछ पार्ट्स गिर गए। 86 में फिर रशिया ने लॉन्च किया मीर, पीस उसका मीनिंग है उनके रशियन इसमें। उसमें 6 कॉस्मोनॉट उनके रह सकते थे, इतनी स्पेस थी। और अभी सिर्फ आना जाना नहीं है, तो वहां पे कंट्रोल रूम बनाई गई, ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सेंटर बना गया, रिसर्च लैब बनाई गई, ग्रीन हाउस भी बनाया गया प्लांटेशन के लिए। 5 साल की गारंटी थी, लेकिन 15 साल तक वो काम करता रहा। 10 स्पेस वॉरियर्स, मतलब कैस्ट्रोनॉट, स्पेस व्योमनॉट्स, कॉस्मोनॉट्स, टियोनॉट्स, चाइना के लोगों को टियागोनॉट्स कहा जाता है। सो ऐसे अलग अलग कंट्रीज से 104 स्पेस वॉरियर्स, अंतराल वीर, उन्होंने वहां पे गए, रिसर्च की, और उन्होंने डिफरेंट मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्या वेदर का वहां का इफेक्ट होता है उसका स्टडी किया, जिसके वजह से आज ये आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खड़ा है, या चाइना का स्पेस स्टेशन खड़ा है। वहां पे एक वेल्लारी करके थे, उन्होंने तो 14 मंथ वहां पे रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो 1 साल से ज्यादा भी लोग वहां पे जाके रह चुके हैं और वापस आ चुके हैं, जिंदा है। सो मेंटेनेंस एक्सपेंस उस वक्त मीर का $20 करोड़ था, इसलिए वो बंद किया गया। 2000 में वो शट डाउन किया गया। लेकिन ये दुनिया के ध्यान में आया, खास करके यूएस ने इसमें पहल की, कि हम सब अकेले एक खर्चा उठा नहीं सकते, हमें अगर दुनिया को एक्सप्लोर करना है, स्पेस को एक्सप्लोर करना है, तो साथ आना होगा। वसुदेव कुटुंबकम, ये भारत की सोच यूएस ने अपनाई, जापान ने अपनाई, जाक्सा ईएसए यूरोप ने अपनाई, और उनके साथ उस वक्त पहली बार एंट्री मिली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिवर्सिटीज को, जो आईएसएस के साथ स्पेस में काम कर पाए। तो वो पहला कदम था जहां पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को एंट्री मिली, और दूसरा कदम हुआ जो एलन मस्क ने किया। और अभी 2023 में कुछ प्रोजेक्ट से 25 में है, 30 में, उन प्रोजेक्ट के बाद एक बहुत बड़ी लाट, कहते ना, वेव आने वाली है स्पेस रिवोल्यूशन की। और हम तब सोचेंगे, जैसे आज एआई, हमने सुना था एआई आने की वजह से 50% जॉब जाएंगे, मैंने 10 साल पहले सुना था, किसी ने एआई के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपने देखा शुरुआत जब हुई फिप के, वो विद द हेल्प ऑफ एआई हुई। सो एआई आज समझ में लोगों के नहीं आ रहा है यूज करना, या उसका लेवरेज उठाना उस इंडस्ट्री का, इसके में तो बहुत पीछे है इंडिया, तो बहुत पीछे। एआई में भी अभी हमारे बाकी देश ही आगे। देखो, एआई ने, चैट जीपीटी ने गूगल को भी पसीने छूट दिए, गूगल को भी। इतनी ताकत रहती है नए रिवोल्यूशन में, नए एज में, अगर हम वो उसको पकड़ पाए तो स्पेस एज, स्पेस रिवोल्यूशन भी एक ऐसा ही बस नहीं, रॉकेट है। अगर हम इसको पकड़ पाए तो भारत दुनिया को लीड कर सकता है पीसफुल वे से। क्योंकि हम अगर स्पेस रेस में आगे रहेंगे तो हमें पता है हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, हम लोग इसका इस्तेमाल ये दुनिया को ग्रो करने के लिए करेंगे, खुद को सिर्फ पावरफुल बनाने के लिए नहीं। सो ऑल नेशंस आर वर्किंग टुगेदर टू एक्सप्लोर स्पेस नाउ। इंडिया ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। हम जानते हैं नासा में ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट हमारे हैं। इतना ही नहीं, इसरो में भी हम जानते हैं, इसरो में कैसे हमने प्रोजेक्ट किए। मंगलयान मूवी हम सब ने देखी होगी, कि मंगलयान जो हमने प्रोजेक्ट किया, यूएस के मूवी से भी मंगलयान जो हमने प्रोजेक्ट किया,
जो यूएस में मूवी बनी उससे कम प्रोजेक्ट में, उससे कम अमाउंट में हमने वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल किया। और इसीलिए जो ये सब अभी जो स्पेस रिलेशन आ रहा है, 40 स्टार्टअप्स ऑलरेडी इनटू स्पेस सेक्टर फ्रॉम इंडिया। 40 से ज्यादा, नॉट ओनली 40, ये संख्या बढ़ चुकी है। आज जितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं उसमें 40 से ज्यादा स्टार्टअप्स ये साल सिर्फ स्पेस सेक्टर में आए। उससे बड़ी बात है इनसाइट में आखिरी कदम पे, आखिरी पड़ाव पे हम जो इम्पोर्टेंट इनसाइट जिसके लिए हम बैठे ऑफ दिस इंडस्ट्री इज कि इन द फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हॉलीडे, मतलब हम जानते हैं बिजनेस को बड़ा करना है तो इन्वेस्टमेंट लानी है। तो इन्वेस्टमेंट हॉलीडे क्या रहता है कि एक पीरियड रहता है जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते, दे टुक अ हॉलीडे। तो उस वक्त भी या फिर इन्वेस्टमेंट का मार्केट नहीं था, बहुत सारी कंपनियां स्टार्टअप बंद हो रहे थे, इन्वेस्टमेंट क्रंच था, उस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ और मैक्सिमम स्पेस सेक्टर में जो स्टार्टअप्स थे उनके ऊपर बिंदास होके इन्वेस्टर ने पैसे लगाए, वीसीज ने पैसे लगाए, बैंकर्स ने पैसे लगाए। आप सोचिए इलॉन मस्क पे कितने करोड़ों खरबों रुपए लगे, और जो वो प्रोजेक्ट होगा तब शायद इलॉन मस्क होगे कि नहीं उनको भी नहीं पता, लेकिन फिर भी लगाए हुए। कुछ कुछ प्रोजेक्ट वैसे 100-150 साल के प्रोजेक्शन में फिर भी उसके ऊपर पैसे लगे क्योंकि फ्यूचरिस्टिक। सो हम आईटी रिलेशन की बस तो हमसे आज से छूट गई, हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर बन के रह गए दुनिया के सबसे बड़े, उसमें हम हमारी कॉलर टाइट कर रहे। लेकिन हम अगर इस रॉकेट को छोड़ना नहीं चाहते स्पेस रिवोल्यूशन को, तो हमें इस स्पेस सेक्टर में जो 4 तरीके हमने जाने, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, ओल्ड प्रोडक्ट, ओल्ड मार्केट, एंड सॉफ्ट मैट्रिक्स के तरीके से, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के जो 3 पैदान हमने देखे, उस तरीके से हम इस सेक्टर में हमें किस तरीके से आ सकते हैं, एज अ वेंडर आ सकते हैं, एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, वो हमें ढूंढना है और उसको पकड़ना है। एआई, हमारी आईटी की बस छूट गई, एआई की बस छूट गई, अभी स्पेस की बस मत छूटने दो, तभी संतुलन बना रहेगा दुनिया में। 12 एस्ट्रोनॉट भेजे गए, 4 लाख लोग काम कर रहे थे, सिटीज बनाने जा रहे। सोचो कितना स्कोप है एंटरप्रेन्योरशिप का, क्योंकि जितने जॉब रहेंगे, जितने लोग लेंगे उतने एंटरप्रेन्योर भी लगेंगे ना, उन सबको मैनेज करने के लिए, उतने सर्विसेज के लिए। तो कितना बड़ा स्कोप है। स्काई इज नॉट द लिमिट माय फ्रेंड्स नाउ, स्काई इज नॉट द लिमिट नाउ। इतना बड़ा स्कोप रहेगा, सिर्फ आपको जरूरत है कदम रखने की, सोचने की कि मैं भी ऐसा कोई, एलॉन मस्क को 2 हाथ 2 पैर ही है, वो भी हमारी तरह ही इंसान ही है, वो क्या सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं हुआ। तो हम भी इस सेक्टर में जा सकते हैं, कुछ ना कुछ योगदान, कुछ ना कुछ खारी सा वाटा का हो ना, हम लोग ले सकते हैं, उठा सकते हैं। सो कोलैबोरेट कर सकते हैं जो लोग इस सेक्टर में। ढूंढिए आज इंडिया में जो 40 स्टार्टअप्स है, उनको जो सर्विस रहते हैं वहां पे कैसे कोलैबोरेट हो सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप कुछ, वो देखिए। कुछ नहीं तो इसमें जो लोग आ रहे हैं उनको उनके विजन के लिए, पर्पस के लिए, उनके मिशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट तो कर सकते हैं। तो इन वे से आप इस स्पेस सेक्टर में आ सकते हैं। हमें भी एक अवार्ड मिला हमारे इस सेक्टर में आने का, space science and technology. So we are into business of providing education of space science and technology. So this is about us. अगर आप अपने आने वाली पीढ़ी को इस सेक्टर में आना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो हम 5th to 12th से लेके तक के बच्चों को ये स्पेस सेक्टर के बारे में सिखा दे, क्योंकि अगला पड़ा उनका है। इसलिए हमारे स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप म्हणजे स्पेस किड्स मास्टरी अभी बेसिक कोर्स है, उसके आगे हमारा किडप्रेन्योर मास्टरी, टीनप्रेन्योर मास्टरी, मॉमप्रेन्योर मास्टरी, स्पेस एंटरप्रेन्योर मास्टरी, ये लेवल के कोर्सेज जहाँ पे जाके बच्चे सिर्फ स्पेस के बारे में जाने नहीं, स्पेस साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट बनना है वो तो बने ही, स्पेस एंटरप्रेन्योर भी बन पाए, इसके लिए हमने ये कदम रखा हुआ है। सो थैंक यू सो मच। ये जितने कम समय में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा दे सका उतना मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। मेरा नंबर मेरे नाम के या बदले लिखा हुआ है, आपको अगर बाद में मुझसे कनेक्ट होना है, जानना चाहते हैं इसके बारे में, जुड़ना चाहते हैं, कोलैबोरेट, कंट्रीब्यूट या कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं, तो मेरे नंबर पे आप पिन कर सकते हैं। सो अंत में इतना ही कहूंगा, हे चंद्र सूर्य सारे तुझ्याच पाठी तुझ्याचसाठी, असे आमचे नवनाथ देवकर सरांनी फिर खूब खूब धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये मेरे जो थॉट्स है, ये जो मेरा पर्पज है आगे रखने का मौका दिया। फिप इज अ वेरी वंडरफुल प्लेटफॉर्म और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे भी कुछ यहाँ पे फूल ना फुलाची पाकड़ी कुछ करने का मौका मिल रहा है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फिप, नवनाथ देवकर सर, ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने काफी अच्छा अंतरिक्ष के बारे में जो अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, और मुझे बहुत खुशी हो रही कि आपने आज के डेट में ये सारा एक्सप्लेनेशन दिया है और हम लोगों को ये सिखाया है कि आगे जाके अंतरिक्ष में कितना सारा अपॉर्चुनिटीज है।
सो थैंक यू वेरी मच। मैं आगे आना चाहूँगा कि क्वेश्चन आंसर्स की ओर जाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा हमारे ऑडियंस को कि फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के बारे में आप सब लोगों ने स्टार्टिंग के पॉइंट में देखा ही है। अब भी अगर आपके माइंड में कुछ हुआ रहेगा कि फिप के साथ कैसे एसोसिएट होना है, सो आपके सामने फिप के साथ ज्वाइन करने के लिए QR कोड है, लिंक है, वो लिंक पे जाके आप बिजनेस स्पॉट के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ में बिजनेस नेटवर्क का लिंक आपके सामने है, वहां पे जाके बिजनेस नेटवर्क प्लेटफॉर्म के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ में अगर आपको लगता है कि और भी प्लेटफॉर्म के साथ आपको कनेक्ट करना है, तो आप डायरेक्टली info@FIIP@FIIP.in ये मेल आईडी के ऊपर मेल लिख के आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगले पार्ट के लिए जाना चाहूंगा और वो पार्ट है आप सब लोगों के क्वेश्चन आंसर्स। सो जिसको भी क्वेश्चन पूछना है या आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में आप आपकी क्वेरी डाल सकते हो या आपका हैंड रेज कर सकते हो। प्लीज ओवर टू ऑडियंस। आपके पास कोई सवाल रहेंगे तो प्लीज पूछिए। हमारे योगेश जी उंडे सर हैं जो आपके सवाल के सही तरह से आंसर देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अभय जी शिंदे सर, अभिजीत जी माने सर, आशीष जी शर्मा, राजेश जी कुमार, संतोष कावरे जी, मिस्टर सोनवने जी, शंतनु रास्ते जी, नितिन जी सोनी जी। क्या आपके पास कोई सवाल है? कुछ भी सवाल आप पूछ सकते हैं, नॉट ओनली रिलेटेड टू स्पेस। अगर आपको लग रहा है कि स्पेस के बारे में थोड़ा और जानना है तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी हम पूछ सकते हैं। सही है सर नवनाथ सर, एंटरप्रेन्योरशिप के बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एनी चैलेंज? Anyone, please. यस, एनी challenges right now you are facing? सर ऐसे सूरत में दो ही बातें होती है, एक तो पूरा समझ में आया या तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो पता नहीं लोग क्यों नहीं पूछ रहे, तो हम पहला ही लेके चलते कि सब कुछ समझ में आया। Yogesh, good evening. Good evening, sir. Good evening. Dr. Mohite here. Yes, sir. Yes, sir. Nice to hear you, sir. Yes, sir. Yeah. You have put very wonderful explanation and everything, whatever you put, that is a, eye-opening thought process to everyone. So being that clarity, transparency, and authenticity, whatever you put through your talk, is make nothing that way to have any question rather, but really I appreciate the way you have given an opportunity to think us from the different dimensions that how you can be an entrepreneur, a space. I think so. This is the worth to say for your presentation. So no question, my dear. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Once again, it's a very thank you कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे आए। आज का दिन आपने काफी अच्छी तरह से नॉलेजेबल बनाया और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से आप फिप के साथ जुड़े रहेंगे, फिप के साथ काम करेंगे, लोगों के लिए हम लोग साथ में काम करेंगे। इट्स टूवर्ड्स सोसाइटी हम हमारा कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच योगेश सर। एंड सभी ऑडियंस के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने आज का दिन यहाँ पे आके कुछ सीखने की कोशिश की। इसी तरह से हम लोग मिलते रहेंगे नेक्स्ट फ्राइडे। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।